नमस्कार, मैं आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। आखिरकार 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर हुई वोटिंग की मतगणना शनिवार तड़के तक पूरी हो ही गई। सबसे आखिर में महाराष्ट्र के नतीजे आए। महाराष्ट्र में बीजेपी को जहां 3 सीटें मिली, वहीं शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने एक सीट पर जीत दर्ज की। हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, जहां वरिष्ठ नेता अजय माकन को हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा में बीजेपी के कृष्णलाल पंवार तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा ने जीत दर्ज की। राजस्थान की बात करें तो यहां कांग्रेस को 3 सीटें मिली तो बीजेपी को 1 सीट पर संतोष करना पड़ा। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों पर वोटिंग हुई। यहां बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। बात हरियाणा की करें तो उलझे समीकरणों के बीच कांग्रेस के अजय माकन को हार का मुंह देखना पड़ा। यह कांग्रेस के 1 वोट के अवैध होने के बाद पूरी बाजी ही पलट गई। कांग्रेस ने राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में 3 सीटों पर आसान जीत दर्ज की। उसके तीनों प्रत्याशी मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी चुनाव जीत गए। परिणाम के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि यह जीत राजस्थान में कांग्रेस की एकजुटता का संदेश है। Really, we didn't understanding this type of killing democracy by the BJP party. They used entire agencies and money and everything to defeat Congress party in this Rajya Sabha election. But I am very much proud that Congress party is winning all the seats. Now they are trying to stop the counting. Not even Haryana, Maharashtra also they are doing the same thing. This is quite unfortunate. I think I didn't understand this. This has never happened because in Haryana counting is not even started. So for now it is 8 o'clock. I think we already represented the election commission. Congress party already represented the election commission to immediately start the counting. I think they will take a decision very soon. ये जीत है श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी के नेतृत्व की। ये जीत है अशोक गहलोत सरकार की। ये जीत है उन सारे कांग्रेस, इंडिपेंडेंट, बीटीपी, कम्युनिस्ट पार्टी, लोकदल और हमारे अन्य विधायक साथियों की, जिन्होंने कांग्रेस की नीतियों में विश्वास जताया। ये हार है उन सारी ताकतों की जो राजस्थान का स्वाभिमान वोट की मंडी में पैसों से खरीदना चाहते थे। ये हार है उन ताकतों की भी जो राजस्थान की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना चाहते थे। ये एक करारा जवाब है उन सब ताकतों को जो प्रजातंत्र पर बुलडोजर चलाना चाहते थे। अल्पमत में होकर वो बहुमत को ठगना चाहते थे। राजस्थान की बहादुर जनता और बहादुर विधायकों ने फिर दिखाया है कि सत्य की जीत हुई। धनबल, बाहुबल, ईडी, इनकम टैक्स और काला it humbles me. It's an honor that the state has bestowed on me. I will have to continue serving the state as I did or even better in this term. Ma'am, as far as when it comes to the funds, only the opposition parties made several allegations on the Nirmala Sitharaman ji when she was the finance minister. She is a finance minister also. What are the several allegations? Can you repeat some of them? They spoke about GST compensation. So what is the allegation on that? They said that they did not. That's not Nirmala Sitharaman. It is the GST Council which decides, in which every state finance minister sits, and the kind of compensation which is being distributed is distributed post the consent being given by all of them. And I, as an individual, or no member of the council as an individual, can do anything to twist it this way. Well, my victory today is not my victory. It is a victory for Team Congress. The entire Congress party, D.K. Shivakumar, the PCC president, Mr. Siddaramaiah, the CLP leader, the chief whips, all the MLAs, everybody voted, not a single invalid vote. It's really a victory for teamwork and team effort. It is Team Congress that has won. My young colleague, Mansoor Ali Khan, deserves full credit for his fighting spirit. He has exposed
the link between the JDS and the BJP. The JDS is the B team of the BJP, and Mansur Ali Khan today has proved that. I want to thank the Congress President, Srimati Sonia Gandhi, for giving me this opportunity. I want to thank the former Congress President, Shri Rahul Gandhi, for giving me this opportunity. But most of all, I want to thank the PCC President, the CLP leader, and all the मेरे साथियों का, सारे MLAs का, जिन्होंने मुझे वोट दी, जिन्होंने मेरी बात सुनी और मुझ में अपना विश्वास जताया। और मैं तो अभी 10 दिन पहले राजनीति में आया हूँ और मैंने अपनी बात लोगों के सामने रखी और उसको रखने का भी मुझे मौका ठीक से नहीं मिला, क्योंकि उनमें से काफ़ी लोग तो बाहर थे। लेकिन जिन्होंने वोट दी और जिन्होंने वोट नहीं दी, मैं दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी एक शुरुआत है राजनीति में। और राजनीति से ज़्यादा मेरी लोगों की सेवा करने में मैं हरियाणा के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए, प्रदेश के लिए, युवाओं के लिए अपने अनुभव से और अपने बड़े बुजुर्गों, भाइयों के आशीर्वाद से काम करना चाहता हूँ, अच्छा काम करना चाहता हूँ। कार्तिकी जी, एक सस्पेंस बना हुआ था लगातार, आखिरकार वो सस्पेंस खत्म होता है और आप जीत दर्ज करते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, शायद ये एक परीक्षा थी और इस परीक्षा से गुजरना अनिवार्य था और परीक्षा का फल तो आप लोगों के सामने आया। नेतृत्व और संगठन का और विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री का, ओम प्रकाश धनखड़ का, संगठन का धन्यवाद करता हूं। मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को एक पूरे हरियाणा प्रदेश के अनुसूचित जाति सर्व समाज को एक राज्यसभा में भेज करके बहुत बड़ा सम्मान दिया। ये बताएं कि कई मुद्दे जो हैं, कई इंटर स्टेट मुद्दे भी हैं, हरियाणा से जुड़े मुद्दे भी हैं, उन मुद्दों को किस तरह से राज्यसभा में उठाया जाएगा? इसके लिए मुझे 1% भी कोई राज्यसभा समझने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि मेरा 25 साल से भी ज़्यादा विधानसभा का अनुभव है और प्रदेश के जो मुद्दे हैं, चाहे SYL का है, दूसरे मुद्दे हैं, उनके बारे में मुझे पूर्ण रूप से पूरा ज्ञान है। तो समय पर हम प्रदेश की हर बात को राज्यसभा में मुद्दा में राज्यसभा की इसी रस्साकसी पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मुन्ना खान कांग्रेस से, शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी से, आनंद त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत ANB न्यूज़ पर। सबसे पहले शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपके पास आएंगे। पूरे देश में आपका जादू चल जाता है, लेकिन राजस्थान में जाके सारा जादू धराशायी हो जाता है और राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ हर बार गहलोत का जादू चलता है। ऐसा क्यों? राजस्थान में बीजेपी ने सारा प्रशिक्षण दिया, तमाम चीज़ें की, लेकिन उसके बाद भी गहलोत वोट निकाल के ले गए। देखिए, जो राजस्थान की जो पोजीशन है उसमें हमारा कोई कैंडिडेट पूरे भारत में कहीं नहीं हारा है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के ऊपर कई बार ऐसा होता है कि हम पूरा सपोर्ट करने के बावजूद भी उनके पास दूसरी पार्टी से या कहीं और से सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो वैसा कमियां रह जाती हैं और राजस्थान में वैसी ही रही है कुछ। हम तो निर्दलीय कैंडिडेट के चुनाव हारने की बात नहीं कर रहे हैं, महाराष्ट्र में हम बात ये कर रहे हैं कि शोभा रानी कुशवाहा ने वोट 4 दिन का प्रशिक्षण हुआ, उसके बावजूद भी वोट कांग्रेस को कर दिया। ठीक है, ये देखो, ये तो चलेगा बहुत सारी चीजें। आप देखो, ये भी तो देखो कि संजय राउत से ज्यादा वोट महाराष्ट्र में। नहीं, वो तो मैं कह ही रहा हूँ ना आपसे व्यक्ति को। शुभेंदु जी, वो तो मैं कह ही रहा हूँ, पूरे देश में जादू चल जाता है, लेकिन राजस्थान में क्या हो जाता है? ठीक है, राजस्थान का भी कुछ तो इलाज करेंगे। हाँ, राजस्थान का इलाज हो नहीं पा रहा है ना, तो ऐसा भी होगा किसी और का भी राजस्थान में इलाज हो नहीं पा रहा है ना, इसलिए राजस्थान में इलाज हो नहीं पा रहा है। कहोगे देखो, त्रिशूल आप ये कहोगे कि पूरे देश को आपने कब्जा कर रखा है। पूरी तो डेमोक्रेसी रहनी चाहिए और जहाँ तक है वो ठीक है। चलिए, आप मान रहे हैं कि राजस्थान में हरियाणा में भी यही हुआ, माखन साहब को। ठीक है, हारे वो वहाँ पे जी। मुन्ना खान जी, क्या हुआ? महाविकास आघाड़ी में तो फूट पड़ गई। नहीं, मैं पहले तो चंद्रशेखर जी में जीते हुए जो हमारे राज्यसभा सांसद है उनको बहुत बहुत बधाई। दूसरी चीज, बीजेपी के मंशे के ऊपर ना ये सवाल लग रहा है बार बार। जिस तरह से इन्होंने जो हमारे राज्यसभा जाने वाले थे, जो नेता जाने वाले थे राज्यसभा, उनको हराने की बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की।
किसी निर्दलीय प्रत्याशी को उतार कर, जैसे सुभाष चंद्र राय के ऊपर, वो तो पहली बार हरियाणा से जीत गए थे, इस बार लेकिन उसकी मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि वहां पे हमारे सबसे बड़े जादूगर अशोक गहलोत जी के आगे उसकी चली नहीं। बीजेपी ने तो भरपूर कोशिश की, बेइंतहा कोशिश की, लेकिन ये कोशिश में कामयाब नहीं रहे। जिस तरह से ये बार बार पैसे के बल पर, धन के बल पर बल लगाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी इसको नाकामियां मिलती है। तो मैं समझता हूँ बहुत ही चिंता के विषय है जिस तरह से ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है बार बार। मैं कहता हूँ ये संविधान को कुचला जा रहा है, जो किसी निर्दलीय प्रत्याशी को उतार करके वोट बटोरने का काम, तोड़ने का और जोड़ने का काम किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। मैं समझता हूँ बहुत ही चिंता का विषय है। कांग्रेस नहीं कर रही है, कांग्रेस बिल्कुल नहीं कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही है, नहीं कांग्रेस नहीं कर रही बिल्कुल। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं मुन्ना खान जी आप। त्रिशूल साहब एक बार हाँ जी आप बताएं। आईना देखते हैं कि नहीं देखते आप? नहीं आईना भी देखता हूँ, खुद भी तो देखता हूँ। क्या टूट जाता होगा, चकनाचूर हो जाता होगा? एक बार आईने के सामने कहना ये बात खड़े होके, तो आईना चकनाचूर हो जाएगा इस बात से। आप देखना ये कैसी बात कर रहे हैं आप? पूरा देश खेल देख रहा है राज्यसभा का, और आप ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस नहीं कर रही है। सब कर रहे हैं भाई, सब कर रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास। आनंद त्रिपाठी जी, ये जो राज्यसभा विद्वान, गणमान्य और तार्किक और ऐसे जो समाज के लिए बड़ा एकदम लाभदायी और ऐसे प्रबुद्ध लोगों के लिए शरण, वहाँ पे एक ऐसा स्थल हुआ करता था जहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें निकलेंगी, लेकिन ये तो धन्ना सेठ थैला खोल और पैसा बोल पॉलिटिक्स अब चल रही है वहाँ पर, और वही लोग पहुँच रहे हैं। हाँ देखिए, राज्यसभा जिस नैतिक और उच्च मानदंडों को लेकर के राज्यसभा की कल्पना की गई थी भारतीय संसद में, वो निश्चित तौर पे अब धूरोषित हो रही है पिछले 20-30 सालों से। ये कोई आज की बात नहीं है। 20-30 सालों से राज्यसभा के चुनाव शक्ति प्रदर्शन पार्टियों के केंद्र बन जाते रहे हैं, और ये अपने आप में बड़ा दुखद है, क्योंकि राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है, और उसकी परिकल्पना ही इसलिए की गई थी कि वहाँ देश के उच्च नैतिकता और पढ़े लिखे लोग और समाज के को दिशा दे सकने वाले लोग वहाँ बैठे और एक रास्ता दिखाएं। ऐसी परिस्थितियों में जब लोकसभा या देश में कि राजनीति कहीं खो रही हो, रास्ते से भटक रही हो, तो राज्यसभा के सदस्यों और राज्यसभा की जिम्मेदारी बनती थी कि वो उनको एक रास्ता दिखाएं। लेकिन निश्चित तौर पे कहने में कोई संकोच नहीं है कि राज्यसभा भी सीधी राजनीति का अखाड़ा बन गया है। हालिया जो चुनाव हुए हैं, इन चुनावों में जो परिदृश्य उभर करके आया है, वो ये दिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो, वो सिर्फ राजनीति को ध्यान में रख करके राज्यसभा का चुनाव लड़ रही है। राज्यसभा के उद्देश्यों, उसके गठन के तौर तरीकों और उसके उच्च मानदंडों का ख्याल अब किसी भी पार्टी को नहीं है, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी भाजपा हो अथवा मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस हो या अन्य राज्य स्तरीय पार्टियां हो। तभी कई सारे छोटे दलों ने तो खुल के कहा, जैसे मिस्टर ओवैसी ने कहा कि कोई गुलाब जामुन खाएगा और हम देखते रहेंगे। मतलब राज्यसभा चुनाव के लिए इस तरह के बयान, और बहुत सारे अन्य, मैंने उनको कोट किया, अन्य बहुत सारे छोटे दल हैं जिन्होंने अपनी लाइन क्लियर नहीं की। महाराष्ट्र में एक सज्जन थे जो कह रहे थे कि मैं वोट जरूर करूंगा, लेकिन अभी मैं तौल लूं कि कहाँ मेरा फायदा होगा। ये वोट की जो कीमत लगाने की बात आ गई ना, ये राज्यसभा में पहुंचने वाले लोगों पर एक प्रश्न चिन्ह उठाता है नैतिक रूप से। वैसे तो जो लोग जीते हैं उनको शुभकामनाएं, और वो राज्यसभा के सदस्य होंगे अगले 6 वर्षों के लिए, लेकिन उनसे आप बहुत उम्मीद मत करिए कि वो देश को अपने राजनीतिक पार्टियों से अलग हट करके देश को, देश की राजनीति को कोई एक नई दिशा दे सकते हैं, में सक्षम है। ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। बौद्धिक रूप से वो भले सक्षम हो, लेकिन पार्टी के तहत वो पार्टी के बंध करके
सिर्फ पार्टी के रीत नीत पर ही बात करेंगे। वो जो उनसे उम्मीद थी राज्यसभा और राज्यसभा के सदस्यों से, उस तरह का व्यवहार निश्चित तौर पर पिछले 30-35 साल में राज्यसभा के सदस्यों ने करना छोड़ दिया, बंद कर दिया। ठीक है, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी कैसे देखते हैं शिवसेना और AIMM का एक हो जाना, कांग्रेस का एक हो जाना, कैसे देखते हैं? राजनीति के लिए क्या क्या नहीं हो रहा है इस देश में? सब कुछ तो हो रहा है। ये आने वाला जो समय है ना, भाजपा वर्सेस अदर्स है। जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो एक साथ होंगे। और ये धर्म युद्ध अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा है, अब 24 में भी देखिएगा। जब कौरवों का युद्ध हुआ पांडवों के साथ, तो पूरे विश्व से जितने असुर थे जिनका पांडवों से कुछ लेना देना नहीं था, नहीं भी लड़ाई थी उनसे, वो कौरवों के साथ मिलकर लड़ने के लिए यहाँ महाभारत के युद्ध में पहुंचे। और कौरवों के साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे वो भी थे। और अब इसी तरीके का महाभारत भारत में हो रहा है। अच्छा, आप खुद बता देते हैं कि लोकतांत्रिक युद्ध नहीं लड़ा जा रहा, दरअसल ये धर्म युद्ध लड़ा जा रहा है। धर्म युद्ध है, बताइए, सच्चाई की जीत होगी। उत्तर प्रदेश में क्या नहीं हुआ? तो राजस्थान में गहलोत सच्चे थे, कई बार हमने कहा राजस्थान में गहलोत सच्चे थे। धर्म युद्ध है। अब आज किसान आंदोलन कहाँ है भाई? वो टिकैत साहब कहाँ घूम रहे हैं? कहाँ ये सब लोग जो जगह जगह पर जो MLA के लिए चुनाव लड़ रहे थे, उनको वो लाठी लेके दौड़ रहे थे? योगी जी का हवाई जहाज उतरने से पहले वहां पे गायों को भेज रहे थे। अवस्थी जी, कभी धर्म से ऊपर भी बात करो, कभी धर्म से ऊपर भी बात करो, देश की भी बात कर लो, देश के हित में भी बात कर लो। सुनो मुन्ना खान जी, अवस्थी जी, कम से कम कभी देश हित में भी बात कर लिया करो। भारत एक धर्म, नहीं, धर्म के ठेकेदार मत बनो, कम से कम हिंदुस्तान की सोच लो, देश के हित में बात करो। धार्मिक देश है, आप इसको धर्म निरपेक्ष मत कहो। धर्म की बात करते करते देश को तो, देश का तो बेड़ा गर्क कर ही रखा है। युवाओं की सोच लो, महंगाई की सोच लो, कम से कम नहीं, धर्म के ठेकेदार बनो। अवस्थी जी, मुन्ना खान साहब सुन लो, पहले बात सुन लो। मैं सुन लो। जब आप कोर्ट में जाते हो तो कसम किसकी खाते हो, कुरान की या गीता की? ये धर्मनिरपेक्ष है? ये आप कहाँ मुद्दे को ले जा रहे हो? अभी राज्यसभा चुनाव के मुद्दे थे। आज ये बताओ कि अजय माकन जी को हराने में आपने कितनी भूमिका अदा की? आप ये बताओ ना, अजय माकन जी को हराने में कितनी भूमिका रही आपकी? आप ये जवाब दो। देश किस तरह? सुनिए मुन्ना खान जी, सवाल तो मैं कर लूंगा, अगर आप कर लेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा? मुझे भी तो काम रहने दीजिए। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, मैं एक जो आनंद त्रिपाठी जी ने जो बात कही कि उच्च सदन के मापदंडों का, उसके मानदंडों का और उसकी प्राथमिकता का क्या होगा अगर इसी तरह से राज्यसभा के सदस्य आने वाले समय में चुने जाएंगे, तो सवाल ये है। एक सवाल ये है, मैं पूछना चाहता हूँ, एक इमरान प्रतापगृही साहब हैं जो बॉम्बे से वहां से महाराष्ट्र से चुनाव लड़ रहे थे। मैंने बहुत खोजा कि ये व्यक्ति का नाम ही नहीं सुना था हमने कि ये कौन है। नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी को तो पूरा देश जानता है, शायर हैं बहुत बड़े। मैं वही तो सुन रहा हूँ, राजनीति आ रही है आपके समझ पे। मैं बता रहा हूँ, आपके समझ पे। सुनो तो मुन्ना खान जी, मैं वही सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी की बातों में भी जाने क्या छुपा रहता है, सुन लीजिए। अब ये कहेंगे राजनीति का नाम नहीं है। मैंने सोचा ये बात कि जब कोई लोग सेलेक्ट करते हैं अपने लोगों को, तो चाहे वो कांग्रेस पार्टी है चाहे भाजपा पार्टी हो, आप बताइए, आज अजय माकन जी को आपने वहां भेजा हरियाणा में, सुरजेवाले को आपने भेजा जो हरियाणा के हैं, उनको हरियाणा में क्यों नहीं रखा? आपने भेजा उनको राजस्थान। ये जो गोलमोल है, मैं बार बार कहता हूं कि आपको इल्जाम लगाना तो बहुत अच्छा आता है, परंतु मुन्ना खान साहब, ये जो सूचिता की बात आप कर रहे थे, मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था। वो जब इमरजेंसी लगाई जा रही थी तब क्या हो रहा था? नहीं, इमरजेंसी, हमारे वो इतना पीछे मत जाइए।
छोड़ो कल की बातें, कल की लेकिन बात आप इन्हें पुरानी। मुक्ति की बात करवाओ। नहीं नहीं, ये सुनिए हमेशा बात कर रहे हैं। सुनिए करते करते सुनिए सुनिए, तो आप मत करो। मैं मस्जिद सवाल, पहुंचेंगे, कभी कुतुब मीनार शुभेंदु जी, पहुंचेंगे। शुभेंदु आप जी, अपने घर में अपने करवाओ बात। लोगों को जितने बचे हैं उनको जरा ढंग से रखो। और यदि मैं आपको समझाता हूं, देश की सुरक्षा रखने के लिए, देश की डेमोक्रेसी रखने के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा। और मजबूत होने के लिए आपको खाली चिंतन नहीं करना पड़ेगा, चिंता भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। मुन्ना खान जी, देखिए शिवसेना, कांग्रेस और AIMM तीनों एक हो गए। सत्ता इतनी बड़ी चीज है कि सत्ता प्राप्त करने के लिए सभी मूल्यों को और सभी नैतिकता को और सिद्धांतों को तिलांजलि देनी पड़ती है, और वो सामने निकल कर आया। बिल्कुल, अगर आप राजस्थान में जीते हैं तो महाराष्ट्र में हार भी गए हैं। आप समझते हैं कि इस तरह सारी आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं विचारधारा को त्यागने का, आपने क्या किया महाराष्ट्र में? आप फिर भी हार गए वहां पर। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ आपको कि बार बार जो जिस तरह से भाजपा की कोशिश हो रही है, ये इनकी जो मंशा थी वो मंशा बिल्कुल जग जाहिर थी, और ये अपनी मंशा में कामयाब हुए। जिस तरह से ये धन और बल का प्रयोग किया गया इनके द्वारा, बीजेपी पार्टी के द्वारा, तो आज ये मंशा में कामयाब हो रहे। तो सवाल तो इसी पे उठ रहा है, अवस्थी जी को बुरा लग रहा थोड़ा। मैं यही तो कह रहा हूँ कि उनको कहाँ बुरा लग रहा है? बीजेपी के द्वारा। उनको तो राजस्थान में बुरा लग रहा है, महाराष्ट्र में अच्छा लग रहा है। उनको कहाँ बुरा लग रहा है? एक तरफ उनके तो हरियाणा में भी अच्छा लग रहा है। हरियाणा में भी अच्छा लग रहा है। नहीं, अच्छा लगेगा, हरियाणा में नहीं अच्छा लगेगा, कर्नाटक में भी अच्छा लग रहा है, कर्नाटक में बहुत ही अच्छा लग रहा है। नहीं, उनको बहुत कहाँ अच्छा बुरा लग लगा। रहा है? वहाँ भी नहीं बुरा। और आपको महाराष्ट्र में अच्छा लग रहा है, इमरान प्रतापगढ़ी जीत गए। नहीं, मैं कह रहा हूँ अच्छा तो हमें हर जगह लग रहा है, लेकिन जिस तरह से भाजपा की कोशिश हुई है और उसके बाद चलिए हुई है, चलिए, मैं ठीक यही है, कह रहा हूँ इनके मंशा पे सवाल उठा रहा है। ठीक है, मंशा पे सबकी सवाल उठ रहे हैं। सर आनंद त्रिपाठी जी, ये चर्चा सब जो चल रही है और खुलेआम जिस तरह पैसे का इस्तेमाल हुआ, शब्द बिल्कुल सब बोलने लगे कि इसमें चल रहा है सब कुछ, क्या लगता है कि लोगों ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं किया होगा कि जिन विधायकों को हम चुन के भेजते हैं उनकी तो बोली लगाई जा रही है, नीलामी उनकी हो रही है, उनको तोड़ने की, मरोड़ने की, जोड़ने की क्या क्या बातें हो रही हैं, तो उनको लगा नहीं होगा कि हम कहाँ हैं, हम कौन लोग हैं? फिर अच्छी होती है, लेकिन भारत में राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों की अंतरात्मा की आवाजें लगभग मर चुकी। ठीक है, पार्टी विप एक चीज होती है, वो एक टूल बनाया गया था, लेकिन वो टूल एक जैसे कि तानाशाह की तरह पार्टी इस्तेमाल करती है। तो अंतरात्मा की आवाज की स्थिति तो समाप्त है भारतीय राजनीति से। अब राजनीति सुविधा का केंद्र बन चुकी है, सुविधा की चीज बन गई है कोई, जहाँ सुविधा है उस तरह की चीज। आप देखिए, लोग व्यक्तिगत तौर पर कहते हैं कि जो निर्दलीय लोग खड़े थे उन्होंने चुनाव में पैसा खर्च करके वोट खरीदने का प्रयास किया। अब देखिए, सरकारें, राज्य सरकारें, आप चाहे राजस्थान की राज्य सरकार को ले लीजिए, महाराष्ट्र की राज्य सरकार को ले लीजिए, राजस्थान की राज्य सरकार की तो आदत बन गई है, मतलब विधायकों को कौन खर्च कर रहा है, जिन होटलों में रखा गया 8-8 दिन 7-7 दिन, इसके खर्च की जिम्मेदारी कौन उठा रहा है? कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। करोड़ों रुपए से ज्यादा के खर्च हुए कौन उठा रहा है? पार्टी नहीं उठा रही है। पार्टी उठाती है, पार्टी उठा रही है तो बताए, वो दिखाए अपने खर्चों में, तो वो चुनाव के खर्चे में जोड़े जाएंगे। ठीक है, पार्टियां नहीं उठा रही हैं, सरकारें उठा रही हैं, और सरकारें उठा रही हैं तो क्यों उठा रही हैं? किस मद से उठा रही हैं? चाहे वो कोई भी कर्नाटक की राज्य सरकार हो, चाहे वो महाराष्ट्र की राज्य सरकार हो, चाहे वो राजस्थान की राज्य सरकार हो, ये जो चीजें हैं, ये राज्यसभा के चुनाव को भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा केंद्र बनाती चली जा रही है। और ये बात इस देश में, इस पर विचार करने को कोई तैयार नहीं है। सभी को राज्यसभा की सीटें चाहिए। वो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो रही है और वो कहाँ तक जाएगी इसका अभी अंदाजा नहीं निकल रहा है। लोकसभा के चुनाव में बल्कि ज्यादा फेयर चीजें तय हो रही हैं, राज्यसभा का चुनाव एकदम से अनफेयर होने की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। मुझे दुख है ये बात कहने में, लेकिन बड़ा दुख होता है कि जब
अंतरात्मा की कोई बात नहीं रहेगी, विधायकों की अपनी कोई सोच नहीं रहेगी। उनको एक लेबर की तरह उठा करके शिफ्ट किया जाता है बसों में बिठा करके। अंतर ये होता है कि वो एसी बसेस होती हैं, कमरे एसी होते हैं, उनके मनोरंजन का इंतजाम कर रही है राज्य सरकारें कि वो हमको वोट दे। ये मतलब ये इस देश में राजनीति किस तरफ जा रही है, इस पर बहुत जबरदस्त तरीके से विचार करने की जरूरत है। उन लोगों को जो वोट दे करके इन विधायकों को चुन रहे हैं क्षेत्र में, उनसे सवाल करना चाहिए कि आप क्यों, आपकी पार्टी जब आप पे भरोसा नहीं कर रही है तो आप किस बात के हैं? पार्टियां उनको होटलों में रख रही हैं, बंद करके रख रही है। ये एकदम से सोने का पिंजड़ा है कुछ दिनों के लिए। तो ये विधायक कहीं रिटेलिएट करने की स्थिति में नहीं है, और वो सब जो कुछ भी पार्टी कर रही है या जो उनका नेता है वो कर रहा है वो होने दे रहे हैं, और ये बड़ी दुखद स्थिति है। इससे निश्चित तौर पर उभरने की जरूरत है। मीडिया और समाज को इस पर विचार करने की एक बहुत मतलब बड़ा डिस्कोर्स की आवश्यकता है। इस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद सभी खुश हैं, विजेता प्रत्याशी खुश है, पार्टियां खुश है, लेकिन इस पर आवश्यकता है कि लोग ध्यान दें इस पर। ठीक है शुभेंदु जी, देखिए पार्षद अगर चुनाव जीते तो वो कहीं होटलों में रह रहे हैं, जिला परिषद के सदस्य चुनाव जीते तो जब तक जिला प्रमुख नहीं बन जाता वो होटलों में रह रहे हैं, और विधायक की ज़रूरत पड़े राज्यसभा चुनाव के लिए तो वो होटल में रह रहे हैं। और आनंद त्रिपाठी जी सही कह रहे हैं कि ये खर्चा आखिर उठा कौन रहा है, और जो जनता वोट कर रही है वो तो अपने घर में ही है, उसको तो पूछा ही नहीं जा रहा कि तुम्हें करना क्या है, लेकिन वो वोट दे रही है, लेकिन सब होटलों में कोई है। और अगर राजस्थान का इतिहास निकालेंगे तो इन 5 सालों में सबसे ज़्यादा विधायक जितने दिन रहे हैं, सबसे ज़्यादा दिन होटलों में रहे होंगे विधायक, अगर इन 5 सालों का रिकॉर्ड निकालेंगे तो क्या ये नहीं लगता कि आपको लोकतंत्र कहीं कमज़ोर हो रहा है? वो कह रहे हैं आनंद त्रिपाठी के राज्यसभा के चुनाव अनफेयर होते जा रहे हैं, तो कैसे लगेगा कि आने वाले समय में लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे लोग हैं, फिर आप कह देंगे लोगों का काम है कहना और हमारा काम है सत्ता में रहना। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आज से 3 साल पहले 13 जून को इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने प्रियंका जी के साथ एक फोटो डाली और उसमें लिखा था मैं अपने हिस्से की तन्हाई महफिल से निकाल लूंगा। जो ला हासिल जरूरी है तो हासिल से निकाल लूंगा। तो आज 2 साल के बाद 3 साल के बाद 2022 में 19 का लिखा हुआ प्रियंका गांधी जी का जो के साथ उनकी फोटो थी, प्रियंका जी को इतना उन्होंने कोल्ड ड्रिंक चाय नाश्ता पानी पिलाया और इतनी सारी फोटो डाली। आप पूरे के पूरे फोटो में आधी से ज्यादा गजलें उन्होंने प्रियंका गांधी जी के साथ ही डाली हैं। नहीं आपने डरा दिया उत्तर प्रदेश में, आपने कह दिया 80-20 का मामला है, 19-20 में देख लिया कौन है। मैं पूरी बात कह रहा हूँ, 80-20 की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ जब नेताओं को चाय पिलाने वाले कोल्ड ड्रिंक पिलाने वाले शायर को टिकट मिलेगा और जीत के आएंगे तो इसी तरीके की राजनीति होगी। मेरी बात मुन्ना खान जी को बड़ी खराब लग रही होगी जब मैंने ये कहा था कि ये कौन है। ऐसा व्यक्ति क्या कांग्रेस के अंदर कोई व्यक्ति बचा नहीं कि कपिल सिब्बल जी को जाकर सपा से टिकट लेनी पड़ी। बढ़िया पढ़े लिखे लोग आज तक आपका चेहरा थे। जो अरविंद केजरीवाल जी 2014 में 2013 में अगेंस्ट करप्शन के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन में कहते थे और कपिल सिब्बल का फोटो पूरे दिल्ली में लगा के रखा था, वो सत्येंद्र जैन जी को बचाने के लिए 3 दिन पहले कोर्ट में खड़े थे ईडी के। तो भैया जब वो कपिल सिब्बल साहब जिसको केजरीवाल साहब ने बड़ी गालियां दी थी, पूरे दिल्ली में पोस्टर लगाए थे, वो उनको ही बचाने के लिए खड़े थे, तो एआईएम ने क्या गलती करी थी? ये क्या है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए आप ना कोई विचार रखते हो, ना कोई अपना संकल्प रखते हो, विचारधारा जाती है कहीं खो और फिर आप कहते हो कि भैया पैसे से हार गए। अपने लोगों को संभालो, अपनी विचारधारा को संभालो, जिसके कारण
भाई हमारी तो हो सकता है राइट विंग विचारधारा हो, वामपंथी की विचारधारा कुछ और हो सकती है, केजरीवाल साहब की आंदोलन की विचारधारा हो सकती है, आपकी तो इतिहास की विचारधारा है 150 साल की। 1887 में 1885 में A.K. ह्यूम साहब ने कांग्रेस को बनाया ही इसीलिए था कि अंग्रेजों के बीच में कुछ ऐसे दलाल लोग बीच में आ जाएं जिससे कि हम आम जनता से बचे रहें। उस विचारधारा को ही कम से कम जीवित रखो। तो आप तो 8 साल से हैं सरकार में, समाप्त कर देते। हमने खत्म किया कांग्रेस मुक्त विचारधारा, कांग्रेस विचारधारा नहीं, कांग्रेस मुक्त विचारधारा। ऐसी विचारधारा को खत्म करना है जो इन्होंने 70 सालों में खत्म करी है और करके दिखाया है। बचा राजस्थान और छत्तीसगढ़, उसको भी समय आने पर बताएंगे। लेकिन राजस्थान में तो संयंत्र नहीं लगा पा रहे ना आप। राजस्थान में तो खुद बीजेपी का विधायक ही टूट गया। ऐसा सब पूरे भारत में लगाया है, राजस्थान में भी चुनाव लड़ेंगे, आने दीजिए। नहीं कैसे लड़ेंगे, यही तो बात, सवाल तो यही खड़ा हो रहा है ना, कैसे लड़ेंगे चुनाव। सर देखिए क्योंकि अभी तक तो कहीं भी गहलोत हाथ रखने नहीं दे रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र में हमारे इतनी जो सीटें आई हैं उसमें फडणवीस साहब का बहुत अच्छा रोल रहा। कर्नाटका में जो सीट आई उसमें बम्बई साहब का बड़ा अच्छा रोल रहा। और यहाँ पे जो हरियाणा में सीट आई उसमें कांग्रेस के लोगों का अच्छा रोल रहा। राजस्थान में चाहे वो कुलदीप बिश्नोई साहब हो, चाहे एक क्लास वोट और हुआ 29 वोटें पाके, तो कहीं ना कहीं हमको कोई सहायता मिल रहा है। राजस्थान में नहीं मिली, कोई बात नहीं, अगली बार फिर ट्राई करेंगे। ठीक है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि बार बार ये सब कह के बड़ी उसकी कि भैया ऐसी क्यों कर रहे हो, भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, ये गलत है वो सही है। आप ही से सीखा है हमने, कोई गलत नहीं होता। चुनाव वार और प्यार, वार मतलब लड़ाई और प्यार, सब कुछ जायज है। जो जीता वही सिकंदर है, ये आपने सिखाया है। वरना अटल जी की सरकारें 1 वोटों से हार जाती थी और गिर जाती थी। हाँ तो परिपाटी बदल गई है ना, सिखाया था कि बीजेपी की परिपाटी बदल गई है ना, जनता पार्टी आपने गिराई थी। बीजेपी की परिपाटी बदल गई है ना शुभेंदु जी। हमने भी सीख लिया सर कुछ इनसे। अब इनको खराब लग रहा है कि हमसे सिखाया, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के, वो भी चलते हैं हमसे तेवर बदल बदल के। तो ये बात इनको खराब लगती है। तो आपको क्या लग रहा है कि 2-4 शेर पढ़ने से ये राज्यसभा पहुंचने का रास्ता आसान है? अब हम भी प्रियंका गांधी आज 3 शेर कह दिए ना आपने, इसलिए भूलेंगे, चाय वाय पिलाएंगे तो राज्यसभा पहुंचेंगे शायद हम भी। मुन्ना खान जी, क्या लग रहा है आपको कि राज्यसभा का जो रास्ता है वो कहीं जनता की उम्मीदों से अलग सिर्फ सुविधा क्षेत्रों के लिए और धन्ना सेठों के लिए खुल गया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। मैं इनके 2 सवालों का जवाब दूंगा। पहला सवाल तो ये है कि जिस तरह से ये चुने हुए राज्यसभा सांसद के ऊपर इन्होंने प्रतिक्रिया दी है, मैं समझता हूँ इनके मानसिकता पे आप किस तरीके की अच्छा करते हैं, इनमें सवाल हमने कुछ बोलेंगे नहीं। दूसरी चीज ले लीजिए भाई, जवाब दे लीजिए। नहीं, अभी आपने बोला ना कि चाय पिलाना है, कोल्ड ड्रिंक पिलाना है, ये इस तरह का चरित्र आपके नेताओं में दिखते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं में नहीं दिखते। एक सवाल। दूसरी चीज में खुद पूछ लीजिए। शुभेंदु जी सुन लीजिए, शुभेंदु जी सुन लीजिए। फिर शत्रुघ्न सिन्हा क्या चले गए? हमारे पास भी जवाब है, आप सुन ले। सवाल रहा नहीं, हंसने से काम नहीं चलेगा। अवस्थी जी सच खड़ी हुई हो तो सुन ले। आप तो कहिए ना भाई अपनी बात। आप सुन ले एक मिनट अवस्थी जी। अंग्रेजों की ये इन्होंने बात की, अंग्रेजों के दलाल थे ये, अंग्रेजों के मुखबिर थे ये। जब पूरा हिंदुस्तान आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, चंद्रशेखर जी के लिए मुखबिरी किसने करी? चंद्रशेखर आजाद के लिए ये अंग्रेजों के दलाल है। चंद्रशेखर आजाद के लिए मुखबिरी किसने करी? इतने बड़े न्यूज चैनल पे आके अपनी वो जिस टाइम पूरा हिंदुस्तान धोती पैजामा पहनता था, उस टाइम ये निकर पहनते थे। अंग्रेजों के दलाल है ये अंग्रेजों के मुखबिर है। इन लोगों पे तो जितने भी कह गए वो कम है। मुन्ना खान जी, अंग्रेजी के दलाल ये माफी कोई भी चंद्रशेखर, आप सुन ले पूरी बात। वो तो जवाहरलाल नेहरू से 5,000 रुपए मांगने आए थे। अरे आप सुन ले, क्या किया आपने? सुभाष चंद्र बोस का क्या किया आपने? सुन ले पहले पूरी बात समझाओ। इतिहास में जाओगे तो बड़े जाओगे। सुन ले नेकर और ये नेकर धोती और पजामे में क्या फर्क है, मुझे समझ में नहीं आया। चुप करवाइए।
चुपकाइए उनको। नहीं, नेकर धोती और पजामे में क्या फर्क है? जवाहरलाल नेहरू जी क्या पहनते थे? धारा है ये, जवाहरलाल नेहरू जी क्या पहनते थे? महात्मा गांधी ने पतलून नहीं पहना। इनकी विचारधारा जो है वो अंग्रेजों से लिप्त थे और ये अंग्रेजों के मुखबिर थे। जिस टाइम लोग माफीनामा छोड़ के शहीद हो रहे थे कि मैं माफी नहीं मांगूंगा अंग्रेजों से, हमें शहीद अच्छा, ये होना पसंद है। बताइए उस टाइम ये बताइए आप, अंग्रेजों के दलाल ये माफी मांगते थे। ये बताइए आप, राज्यसभा चुनाव का कोई लेना देना है इससे? नहीं, बिल्कुल है। अभी इन्होंने बात खोली है अंग्रेजों की। आप जवाब दे रहे थे इमरान प्रतापगढ़ी का, आप जवाब देने कहाँ चले गए? मैं कह तो रहा हूँ, कांग्रेस में कोई नेता नहीं मिला आपको? अरे मैं आप सुनो मेरी बात, इमरान प्रताप आप उनके बारे में नहीं जानते, वो कांग्रेस के ही नेता है। वो 1000 फोटो में से 900 फोटो प्रियंका गांधी जी के साथ हैं। आप सुन ले पूरी बात सुने। मोदी जी की फोटो नहीं लगी होती है, अपने नेताओं की, जेपी नड्डा की फोटो नहीं लगी होती, अमित शाह की नहीं, तो राहुल गांधी की नहीं लगाएंगे, सोनिया गांधी की नहीं लगाएंगे? कैसी बात कर रहे हो? नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो? नहीं, यहाँ पे अरे मिर्ची हमें क्यों लगेगा? मैंने तो कोल्ड ड्रिंक की बात करी है और कुछ पीने की बात ही नहीं करी। अरे पूरी बात तो सुन लो। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। आप ये जो आपका सवाल है ये आपके मानसिकता को दर्शाता है, मैं और कुछ नहीं कहता। मेरी मानसिकता तो यही है। नहीं, ये आपके विचारधारा को दर्शाता है। ठीक है, चलिए। आपके मुन्ना खान जी के फोटो निरोध पे लगे मुन्ना होते खान जी देखिए, जवाब दे दीजिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जवाब दे तो रहा हूँ। सुन लीजिए, इमरान प्रतापगढ़ी, मैं जवाब दे रहा हूँ। इमरान प्रतापगढ़ी को क्यों लाए, ये कह रहे हो, बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ ऐसा है, मैं उनको इनको जवाब दे रहा हूँ। ये पार्टी नेतृत्व का फैसला था और पूरे हिंदुस्तान के दिलों पे राज करने वाले बहुत अच्छे नेता और शायर है। दूसरी चीज, वो जनता की आवाज उठाने वाले और राज्यसभा में वही व्यक्ति जाएगा जो जनता के दुख को, दर्द को समझ सके और बीजेपी की जो विचारधारा उसको खंडन कर सके, बीजेपी की जो छुपने छुपाने वाली खेल उसको जग जाहिर कर सके। ऐसे लोगों को राज्यसभा सांसद भेजने का काम हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है, रहेगा। बिल्कुल। ये अनंत त्रिपाठी जी, इमरान प्रतापगढ़ी को जब राज्यसभा का टिकट दिया गया तो कहीं कांग्रेस में आंतरिक विरोध भी हुआ और 80-20 की बात कही थी बीजेपी ने, लेकिन उसके प्रभाव में दिखी कांग्रेस। ऐसा नहीं हुआ? मेरा इससे अलग सोच है ना दोनों पार्टियों से। हालांकि वो कांग्रेस का समर्थन करता हुआ नजर आएगा, लेकिन मैं दूसरी सोच से कह रहा हूँ। पार्टियां अपना टिकट तय करती हैं अपने लोगों के लिए, राज्यसभा की या लोकसभा का या विधानसभा का चुनाव, उनको अधिकार है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब रही बात कि क्या वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है, ये भी पार्टी ही तय करेगी। अब इमरान प्रतापगढ़ी को किस क्वेश्चन को ध्यान में रख करके टिकट दिया गया, वो आपको, हमको, मुन्ना खान जी को, सबको पता। महाराष्ट्र में प्रियंका गांधी संगठन पर अपना एक पकड़ बनाने की प्रयास में है और उसी क्वेश्चन को ध्यान में रख करके इमरान प्रतापगढ़ी को दिया गया। उसके दो फायदे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों को साध सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। इस बात को ध्यान में रख करके दिया गया है टिकट। लेकिन हम इस बात पर सवाल उठाने की बजाय कि प्रत्याशी कौन है और उनकी स्थिति क्या है, इससे ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि राज्यसभा के चुनाव को हम किस तरीके से फेयर और पारदर्शी कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। इस पर गौर करना चाहिए। भाजपा इस वक्त सत्ताधारी पार्टी है ज्यादातर जगह पर। अभी भाजपा के साथी कह रहे थे कि इमरान प्रतापगढ़ी को कोई नहीं जानता है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जब गडकरी जी को अध्यक्ष बनाया गया था तो उस देश में कितने लोग जानते थे महाराष्ट्र के बाहर गडकरी जी को? जब बंगारू लक्ष्मण को बनाया गया था अध्यक्ष तो कितने लोग जानते थे बंगारू लक्ष्मण को आंध्र प्रदेश के बाहर? जब कुशाभाऊ ठाकरे आए तो कितने लोग जानते थे कुशाभाऊ ठाकरे को? ये पार्टियों का अंदरूनी मसला है, ये बीजेपी का भी मसला था, इस पर कोई सवाल नहीं है। ये कांग्रेस का मसला है कि वो इमरान प्रतापगढ़ी को दे या XYZ को दे। सवाल यहाँ बड़ा परिप्रेक्ष्य ये है कि राज्यसभा के चुनाव फेयर होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और जिस उद्देश्य को लेकर के राज्यसभा गठित की गई है, उसका परिकल्पना की गई है, उस उद्देश्य के साथ होने चाहिए।
ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है जो आज आपने उठाया है। इस पर चर्चा नहीं हो रही है देश में, ये डिस्कोर्स नहीं बन पा रहा है, लेकिन इसे बनना चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर ये आता है, क्रॉस वोटिंग करते हैं लोग अंतरात्मा की आवाज मान करके, तो उसका भी एक तौर तरीका विकसित होना चाहिए। चुनाव आयोग को ये एक छूट विधायकों को देनी चाहिए, उसे स्टेबलाइज करना चाहिए, उसे ऑथेंटिसिटी देनी चाहिए कि अगर विधायक पार्टी विप से अलग जाकर के वोट देना चाहता है तो उसके भी कुछ तौर तरीके निर्धारित होने चाहिए राज्यसभा के चुनाव में। मेरा मानना है इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और विधायक पार्टी के बंधुआ मजदूर बन करके न रह जाएंगे। ऐसा सुझाव है, मानना है मेरा। शुभेंदु जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सुना होगा आपने आनंद त्रिपाठी जी को। आनंद त्रिपाठी जी स्वच्छता की बात कर रहे हैं, उसी से आनंद जी किसको टिकट देना चाहिए ये हमारा तो विषय है ही नहीं। कांग्रेस जिसको चाहे उसको दे, पर हमको ऐसा लगता है, पर विषय देखिए हम कहेंगे तो है ही ना कि भाई गुलाम नबी आजाद को रखते, इतने समय तक इतने अच्छे लोग और इतना अच्छा उन्होंने राज्यसभा में काम किया, आपने जस्ट खाली नहीं, आपका एजेंडा अलग है, उनका एजेंडा अलग है भाई। गुलाम नबी आजाद तो भाजपा का विरोध ही नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्यों देगी? आप मुझे बताइए। मैं कह रहा हूँ अच्छे लोग जो जिन्होंने सालों साल तक कांग्रेस को दिया है, ये कब साबित हो गया? इमरान बुरे हैं, माफ करिएगा मुझे, इमरान बुरे हैं या इनकॉम्पिटेंट है, ये साबित कब हुआ? कभी गुलाम नबी आजाद भी जब 32 साल के थे तो कांग्रेस ने उन्हें चुनाव में टिकट दिया, तब वो भी इतने कॉम्पिटेंट देश नहीं जानता था। ये भी मैं इमरान का समर्थक नहीं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का। इमरान हो सकते हैं आगे बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ बन जाएं, उभरें, शुभकामनाएं दीजिए उनको। मैं आपको खाली इतनी बात करना चाह रहा हूँ कि गुलाम नबी आजाद जी एक बड़े सुलझे हुए नेता रहे और इन्होंने पिछले 5 साल और उसके पहले के भी समय जो उनका इतिहास रहा, उन्होंने अच्छे तरीके से अपने विचार रखे, राष्ट्रवादी विचारधारा रखी। मैं कह रहा हूँ कपिल सिब्बल साहब, अजय माकन साहब, ये सब लोग ऐसे लोग हैं जो बहुत समय से कांग्रेस के लोग हैं, पर वो क्या रहा कांग्रेस में जो भी नेता बड़ा नेता बनना चाह रहा है राष्ट्रवादी हो गए। बताइए, आप ही आरोप लगाते रहे कि अफजल गुरु के लिए 2-2 बजे कोर्ट खुलवाते रहे ये लोग, तो फिर ये कैसे राष्ट्रवादी हो गए? कांग्रेस के जो नेता है, कांग्रेस कर क्या रहा है? जो अपने बड़े नेता हो जा रहे हैं, जो कहीं पर कांग्रेस के बड़े इससे बड़े नेता ना हो जाए, इसलिए उनको खत्म किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज लोकतंत्र में कांग्रेस की बड़ी आवश्यकता है। जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका हम निभाते थे, आज कांग्रेस को निभानी चाहिए। तो कांग्रेस ने क्या किया कि अपने बड़े नेताओं को खत्म करना चालू किया, और ऐसे लोग जिसमें इमरान जी के नाम के ऊपर इतना डिस्कशन हुआ कि कई लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि हम पार्टी छोड़ देंगे, पर उसके बाद भी प्रियंका गांधी जी नहीं मानी, बोले कि आप छोड़े तो छोड़े, हम भी छोड़ देंगे। इतना ज्यादा हार्ड डिस्कशन हुआ, फाइनली कांग्रेस ने जो डिसीजन लिया, अच्छी बात है, वो जिसको चाहे उसको लिया है और जिसको जिताए, मेरे को कहीं दिक्कत नहीं है। त्रिपाठी जी हमारे मित्र जो कह रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कितने लोगों ने विरोध किया? क्या एक आदमी का भी नाम है आपके पास, या झूठ परोसने का काम फिर यहाँ भी करो? नहीं, विरोध तो हुआ था मुन्ना खान जी। कैसी बात पता लगा लो भाई, आप पता लगा लो मुन्ना खान जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये कि पार्टी के हमारे पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर कम से कम ये तो है कि कार्यकर्ता आवाज उठा सकता है, स्वतंत्र है, दूसरे पार्टियों की तरह नहीं है जो गला को दबाए रखे आप आवाज नहीं निकाल सकते। सिर्फ 2 ही आदमी की आवाज सुनने पड़ेंगे और आपको हाँ या ना में जवाब देना है, तीसरा शब्द आप बोल नहीं सकते। ऐसा तो नहीं हमारे कांग्रेस आवाज उठाते रहो, हमारे कांग्रेस पार्टी से आप सुने, आप आज आवाज उठाते रहो कि हम एक हैं और अनेक हो जाओ। पूरी बात इतने भाग्य में बच गए आवाज उठाने के चक्कर में। जिन्होंने भी आवाज उठाई है उसको कांग्रेस ने साइडलाइन कर दिया है। G23 का क्या हुआ? पूरी बात सुनिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर से अगर कपिल सिब्बल गए, मैं समझता हूँ उनका व्यक्तिगत राय था, मैं उसकी बुराई नहीं करूंगा। तो कांग्रेस पार्टी ने उस MLA MP मंत्री
केंद्र में भी मंत्री बनाया, मान सम्मान देने का काम नहीं किया, ऐसा नहीं है। अब उनके व्यक्तिगत फैसला है, वो चले गए दूसरे में। हो सकता है वो अपनी विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से उसकी मैच में क्या हो या कोई बात अंदरूनी, वो चले गए। तो जाने वाले को कोई नहीं रोकेगा। साइंस भी इतनी तरक्की की है कि जाने वाले को हम नहीं रोकते, आने वाले को तो रोक देते हैं, जाने वाले को नहीं रोकते। और ये बातें अवस्थी जी आप खुद कह रहे हो, जो बीजेपी के आप प्रवक्ता हो, आपको भी थोड़ी बहुत नॉलेज या ज्ञान होनी चाहिए कि आपके पार्टियों से किस तरह लोग गए हैं, किस तरह जलील करके भगाए गए, और आप हमारे पे आज आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो। मैंने तो कहा ही नहीं कुछ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। राजनीतिक पार्टी है, जाएंगे भी आएंगे नहीं। शुभेंदु जी, हमने तो मना नहीं किया। शुभेंदु जी देखिए शुभेंदु जी, मुन्ना खान जी रुकिए। देखिए शुभेंदु जी, हम ये कह रहे हैं कि आनंद त्रिपाठी जी जो कह रहे हैं कि भाई उच्च सदन में कैसे चुनावों की पारदर्शिता सही मायने में स्थापित हो, इसके लिए काम नहीं हो सकता क्या? या यही रहेगा पैसा खोल, पैसा बोल। 57 में त्रिपाठी जी को एक ही बात बताना चाहता हूँ, 57 सीटें थी, 41 सीटों में तो कोई फर्क था ही नहीं कहीं। जिसकी जितनी सीटिंग होती थी, सपोज करिए कि किसी एक पार्टी को किसी स्टेट में 87 सीटें मिली और 25 लोगों के ऊपर एक चुना जाना है एक रेशियो के हिसाब से, तो 3 तो क्लियर हो ही गए। अब बचा जो 11 सीटें, वो क्या होंगी? तो वो जो 11 वोट थे, उसके लिए ये सब मुश्किल है कि या तो वो एक इंडिपेंडेंट खड़ा करे, या इंडिपेंडेंट को अपने लो, या क्रॉस वोटिंग हो। तो हमेशा जो ये 16 सीटें बचती हैं, ये सब चीजें चलता है। हम लोग अपने को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये कैंडिडेट अच्छा है। कई बार इतिहास में आपने देखा होगा कि दोनों पार्टियों ने अपनी राजनीतिक स्थिति को छोड़कर अपने वोट दिया ऐसे लोगों को। कोई बहुत बड़ा कलाकार था तो कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, उनको भी दिया गया। पर अब समय नहीं रह गया। लोगों को लगता है कि इस 16 सीटों में भी, जैसे आज 16 सीटों का चुनाव हुआ, हमको 8+1 सीट मिली, 9 सीटें मिली हैं। शुभेंदु जी, मैं आऊंगा आपके पास। राज्यसभा सीटों के नतीजे साफ हो गए हैं। कहाँ कौन भारी रहा, सीटों का क्या रहा पूरा हाल, कौन जीता कौन फंसा, न्यूज रूम से बता रहे हैं मेरे सहयोगी लक्की जगवानी कि कौन से राज्य में किस पार्टी की तरफ से कौन कौन उम्मीदवार थे और क्या समीकरण बने। तो चलिए समझते हैं यहाँ एक एक सीट का पूरा गुणा भाग सीधे न्यूज रूम से। 16 राज्यसभा की सीटों पर खेला जो है वो खत्म हो चुका है। राज्यसभा की सियासी रस्साकसी खत्म हो चुकी है और अब यहां पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि राज्यसभा में कहां पर किसका गणित फंसा और क्या रहा पूरा समीकरण। बाड़ेबंदी से लेकर नंबर गेम तक आखिर किसका जादू कहां से चला। तो यहां पर आपकी डिजिटल स्क्रीन पर हम आपको बताते हैं कि राज्यसभा चुनाव में कौन आखिर कहां से जीता। सबसे पहले यहां हम आपको बताते हैं राजस्थान का क्या कुछ हाल रहा। राजस्थान में कांग्रेस ने पार्टी की लाज को बचा लिया और यहां पर यह कह सकते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की बाड़ेबंदी सफल रही और पार्टी के तीनों ही कैंडिडेट चुनाव को जीत गए। अगर एक वोट भी पार्टी के तीसरे कैंडिडेट प्रमोद तिवारी को कम मिलता तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत सकती थी। तो इस तरह से राजस्थान में 3 सीटों पर कांग्रेस यानी कि मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी की जीत हुई और एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि घनश्याम तिवारी की जीत हुई और इसी के साथ ही निर्दलीय सुभाष चंद्रा को सिर्फ 30 वोट मिले और वे चुनाव को हार गए। अब बात करते हैं उस राज्य की जहां के परिणामों ने सबसे ज्यादा हैरानी दी। हम यहां पर बात कर रहे हैं हरियाणा की, जहां पर जीत का जो अंक गणित है वो इस तरह से बदला कि तमाम अटकलें बेकार हो गई और कृष्णलाल पवार और निर्दलीय के कार्तिकेय शर्मा ने यहां पर जीत हासिल की। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए वरिष्ठ नेता अजय माकन को यहां पर हार का सामना करना पड़ा और महज 1 वोट के कारण उन्हें यहां पर हार का सामना करना पड़ा। अब यहां पर बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर शिवसेना को झटका लगता नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की झोली में 3 सीटें आई है। यहां पर बीजेपी के 3, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस से एक सांसद बनाए। तो यहां पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की 6 सीट और 7 उम्मीदवारों का आंकड़ा कि महाराष्ट्र में किसके सिर पर सजा ताज और इसका फैसला हो चुका है। अब यहां पर बात करते हैं कर्नाटक की। यहां पर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने कर्नाटक का किला जीत लिया है। यहां पर बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिली। यहां पर
निर्मला सीतारमण और साथ ही साथ एक्टर और लहर सिंह की जो जीत है वो यहां पर मिली है, और साथ ही साथ में यहां पर जयराम रमेश भी जीते हैं। तो यहां पर हमने यहां पर समझा कि क्या रहे जीत के समीकरण, कैसे कर्नाटक में बीजेपी का कमल खिला, हरियाणा में कांग्रेस से कहां पर चूक हुई, महाराष्ट्र में किसको फायदा किसको नुकसान हुआ, और राजस्थान में सीएम गहलोत का कैसे जादू चला। इन परिणामों के सामने आने के बाद आखिर में यह कहना चाहूंगा, भाई वाह, कड़क चाय में पार्ले जी बिस्कुट भिगो कर खाने वाले सियासत के जादूगर हैं अशोक गहलोत। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जीत के समीकरण को जिस तरह से अशोक गहलोत ने बिगाड़ कर रख दिया और प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला को जीत का सहरा बांधकर भेज दिया राजस्थान से राज्यसभा, इससे राहुल गांधी को जादू दिखाने वाले अशोक गहलोत ये कह सकते हैं कि आज बन चुके हैं कांग्रेस के चाणक्य। कैमरा पर्सन करण मेहरा के साथ लकी जगवानी, एएनपी न्यूज। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। हम समझ रहे थे राज्यसभा का गणित कौन कहां पर कैसे जीता है, कैसे हारा है और क्या क्या जुगाड़ लगाया गया है जीत के लिए। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, जो आनंद त्रिपाठी जी ने सवाल छोड़ा था मैं उसको पूरा करना चाहता हूं, और मेरा सवाल आपसे भी, मुन्ना खान जी से भी, आनंद त्रिपाठी जी से भी, कि क्या ऐसा दौर नहीं आएगा अब कि जब राज्यसभा के चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए और शुचितापूर्ण बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे, या यही होता रहेगा थैला खोलने का काम? देखिए, मैं यदि स्टेटमेंट देना चाहूंगा कि ये तो हार जीत पे डिपेंड करता है। हमने 57 सीटों के ऊपर 41 सीटों पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। 16 सीटें जो बच गई जहां पे कुछ इंडिपेंडेंट लोग खड़े हुए, हमने कुछ, अब कांग्रेस को सपोर्ट करने से अच्छा है कि हमने इंडिपेंडेंट को सपोर्ट किया, और यहाँ हरियाणा से लेके मुंबई तक सब लोगों ने काम किया अपना। चुनाव हम लोग एक चुनाव, हर चुनाव, छोटे से बड़ा चुनाव को हम जीतने का प्रयास करते हैं। परंतु यदि कुछ ऐसा सभी दलीय बैठ के कुछ ऐसा तय करते हैं कि इसके अंदर और कुछ सूचिता आ सकती है और कोई तरीका है इसको चुनाव आयोग की ओर से या पार्लियामेंट में पास करके जिनसे कि ये व्यवस्थाओं को और अच्छा किया जा सकता है, तो उसका हम स्वागत करते हैं। और जरूर कोई ऐसा तरीका है जो त्रिपाठी जी बता दे या मुन्ना खान जी बता दे या कोई और बता दे, हम उस चीजों को लाएंगे, पार्लियामेंट में लाएंगे, और उसमें कहीं भी कोई नहीं है। जितना तरीके से पारदर्शिता से चुनाव होगा उतना ही लोकतंत्र और उतना ही देश आगे जाएगा। ठीक है मुन्ना खान जी, कब खत्म होगा ये सिलसिला होटलों में, रिसोर्ट में और थैलों में और सूटकेसों में चुनाव जीतने का, या नहीं होगा? मुन्ना खान जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए मैं आऊंगा आपके पास। आनंद त्रिपाठी जी, ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा या कभी खत्म होगा? इसको खत्म करने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि, और उसके प्रयास की शुरुआत सत्ताधारी दल को करना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वर्तमान में भाजपा जिस ओर बढ़ रही है वो इसे खत्म करने की, सारे तकलीफों को खत्म करने के लिए चुनाव, राज्यसभा के चुनाव सुधार जैसे कोई किसी मसले पर उसका ध्यान है। वो और चीजों में लगी हुई है, निश्चित तौर पर कई सारी बातें हैं, लेकिन मेरा मानना है कि चुनाव सुधारों की जो शुरुआत होगी वो सत्ताधारी दल की तरफ से ही होनी चाहिए। बाकी लोग से डिस्कोर्स, वो बातचीत कर सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं, उनके विचार ले सकते हैं, लेकिन इनिशिएटिव तो उन्हें ही लेना पड़ेगा। लेकिन मेरा दुख के साथ जी, मुन्ना खान जी, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल राज्यसभा का चुनाव उस वर्चस्व की लड़ाई है जो कहीं राजनीतिक दलों के दंभ को साबित करता है, और इसी दंभ को साबित करने में कई लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन होता जा रहा है, जो कि गैर जरूरी है, और शायद राजनीतिक दल इस ओर ध्यान देना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनपी न्यूज।